The next way you can use AI in your writing process is to add depth to your content. तो यहाँ पर आपको prompt नज़र आ रही है कि add more details to the following content without changing the original meaning. Write in easy to understand language. For example, मैं इसको कह सकती हूँ कि मैंने prompt दे के उसको अपना text दे दिया and let's see कि मुझे ChatGPT इसको किस तरह से रीजनरेट करके देता है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी and you will see our original paragraph was feeling embarrassed about not inviting a few important people to your wedding. You can take advantage of COVID-19 and invite them to virtually attend your wedding ceremony on Zoom. सो इन 2 लाइंस को या 3 लाइंस को ChatGPT ने एक्सपेंड करके 5 लाइंस का कर दिया है एंड लेट्स सी कि क्या वैल्यू इसने ऐड की है। फीलिंग एम्बेरस्ड बिकॉज यू कुडंट इनवाइट अ फ्यू इंपॉर्टेंट पीपल टू योर वेडिंग, do not worry, there is a simple solution. You can use COVID-19 as an opportunity to include everyone you care about. Invite them to join your wedding ceremony virtually on Zoom. This way they can still be a part of your special day even if they cannot be in person. It's a great way to share celebration with loved ones who might not be able to attend otherwise. तो यू कैन सी हमने जहाँ पर कंटेंट में हमें ज़्यादा डेप्थ चाहिए थी या उसको एक्सपेंड करना था तो AI ने हमें वहाँ पर हेल्प आउट किया. नाउ यू कैन अगेन एडिट दिस वन एंड आपको अगर लगता है कि हमें कोई चीज़ यहाँ से कट करनी है तो आप कट कर सकते हो और उसको फर्दर रिफाइन कर सकते हो. आफ्टर दिस यू कैन यूज़ AI टू एड रियल वर्ल्ड और रेलिवेंट एग्जाम्पल्स. सो यू कैन सिंपली टेल इट समथिंग लाइक add examples to support this statement और आप अपना टेक्स्ट ऐड कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल add examples to support this statement. A small wedding usually means a small budget. So figure out how much you want to spend and where to spend it. अब जो भी कंप्लीट स्टेटमेंट है मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके AI को दे दूँगी एंड लेट्स सी कि हमें क्या जनरेट करके देता है. सो यू कैन सी कि AI ने हमें इसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करके दिया है. For example, you can say a small wedding usually means a smaller budget, so it's important to plan carefully. अब उसने यहाँ पर example ऐड कर दिया है. For example, if you decide to spend $5,000 on your wedding and you are inviting 50 guests, that means you have an average of $100 to spend per person. फिर उसने further इसको explain करते हुए इसी example को continue किया है. Start by setting a budget for different aspects of the wedding. For instance, allocate $2,000 for the venue, which might cover a cozy, intimate space or a small banquet room. With the remaining $3,000, you can then budget for other important details like catering, decoration and entertainment. इसी तरह से उसने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है कि कैटरिंग के लिए आप क्या करोगे एंड लाइकवाइज अदर थिंग्स के लिए. तो इस तरह से एग्जांपल्स ऐड करने के लिए भी आप AI को यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट वे यू कैन use AI is to add metaphors or to have it suggest you metaphors for your content. Metaphors होते क्या हैं कि हम किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक आइडेंटिकल सिचुएशन को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं. सो इस पर्पज़ के लिए हम ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि सजेस्ट X मेटाफोर्स टू बेटर इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट और यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट इंसर्ट कर दोगे. फॉर एग्जांपल सजेस्ट 5 मेटाफोर्स फॉर दिस स्टेटमेंट. इंटरनल लिंक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर SEO बिकॉज दे हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड योर साइट स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड अथॉरिटी. तो मैं इसी को कॉपी करके ChatGPT को दूंगी एंड आई विल सी कि वो मुझे क्या प्रोड्यूस करके देता है. सो यू कैन सी ChatGPT ने मुझे यहाँ पर 5 सजेशंस दी. नंबर 1, इंटरनल लिंक्स आर द रोड मैप्स फॉर सर्च इंजन्स गाइडिंग देम थ्रू योर साइट्स लेआउट, कंटेंट एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. Think of internal links as the building blocks of your website architecture, helping search engines piece together the full picture of your site structure and significance. Then it is giving the metaphor of internal links act as a signpost on your website journey, directing search engines to understand the landscape of your content and the value of each section. इसी तरह से इसने हमें और भी दी हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये मेटाफोर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या वैल्यूएबल नहीं है तो आप इसको फर्दर प्रॉम्प्ट दे सकते हो. समथिंग लाइक मेक इट ईजी एंड मोर रिलेटेबल, समथिंग लाइक दैट. एंड वी कैन सी कि वो हमें क्या देता है. सो उसने हमें फिर से 5 डिफरेंट सजेशंस दी.
कि इंटरनल लिंक्स आर लाइक रोड साइंस फॉर सर्च इंजन्स हेल्पिंग देम नेविगेट थ्रू योर वेबसाइट एंड सी हाउ everything is connected. So this example is a little more easier to understand. Think of internal links as the paths in a park, guiding search engines through the different areas of your site and showing how each part is related. So this one is very easy to understand क्योंकि हमने path वाली example से उसको relate कर दिया तो पढ़ने वाले के लिए इसको समझना easy हो गया. After metaphors, you can use AI for researching स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स. अब सारे AI टूल्स ये नहीं कर पाते, सिर्फ वही कर पाएंगे जिनके पास रियल टाइम ब्राउजिंग की कैपेबिलिटी है. तो ChatGPT-4 इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो. उसकी पेड आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन अदर देन दैट आप जो है वो मेटा AI को भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगी कि सर्च द वेब एंड लिस्ट 5 मोस्ट रिसेंट स्टैट्स अबाउट SEO, तो हम देखेंगे कि मेटा AI हमें क्या देता है. अब इसने मुझे जो है वो यहाँ पे 5 स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं और साथ यहाँ पे रेफरेंस भी मेंशन कर दिया है कि इसने कहाँ से ये स्टैट्स उठाए हैं. तो Google's algorithm has over 200 factors and it owns almost 94% of market share for mobile search and over 90% of searches worldwide happen on Google. इसी तरह से इसने मुझे 4 और भी स्टैट्स यहाँ पे दिए हैं, तो आप इनको भी अपने कंटेंट में अगर रेलिवेंट है तो ऐड कर सकते हो. बट ऑलवेज मेक श्योर कि जो AI आपको स्टैट्स दे रहा है वो फैक्चुअली करेक्ट है और वाकई में वो बेस्ड ऑन रिसर्च है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस अदर वेज जहाँ पे आप AI को अपने कंटेंट राइटिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल रीफ्रेजिंग एनी स्टैटिस्टिक्स और एनी कंटेंट. आपने कोई स्टैट वेबसाइट से उठाया है और उसको रीफ्रेज करना है, या कोई भी कंटेंट है उसको रीफ्रेज करना है, तो AI को यूज़ कर सकते हो. देन यू कैन यूज़ इट फॉर कन्वर्टिंग फीचर्स इनटू बेनिफिट्स. इट इज़ हेल्पफुल व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस जो भी होगी उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे इनटू बेनिफिट्स दैट हुक द रीडर, और फिर यहाँ पर मैं फीचर्स की लिस्ट इंसर्ट कर दूंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेम प्रॉम्प्ट AI को दूंगी या ChatGPT या इसी को दे दूंगी मेटा AI को, लेट्स सी ये हमें क्या देता है, और मैं ChatGPT को भी दे दूंगी, लेट्स सी ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है. तो यू कैन सी मेटा AI ने इन सब फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर दिया कि हेयर आर द फीचर्स ऑफ iPhone 15 कन्वर्टेड इनटू बेनिफिट्स विद द रेटिंग ऑफ IP68 योर iPhone 15 कैन withstand splashes, water and dust, giving you the freedom to capture life's moments without worrying about damage. Then इसने दूसरा जो इसका फीचर था कि A16 बायोनिक चिप, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस, और फिर उसको एक्सप्लेन किया है. इसी तरह यू कैन सी हर एक फीचर को उसने ईजी टू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर दिया है. इसी तरह से अगर हम ChatGPT को देखेंगे तो उसने भी फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर दिया है. So it makes the process a lot easier for you. And then there are a few other ways you can use AI in your writing process. For example, to improve readability. प्रॉम्प्ट आपके पास प्रोवाइडेड है, लिस्ट भी आपको प्रोवाइडेड है, तो आप ये सब टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट टू कट फ्लफ इन योर कंटेंट एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी. यू कैन यूज़ इट टू पर्सनलाइज योर कंटेंट. आपने एक जर्नल कंटेंट लिखा है और आप उसको पर्सनलाइज करना चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, तो यू कैन यूज़ समथिंग लाइक रीराइट दिस. जो भी आपने रीराइट करवाना होगा उसकी डिस्क्रिप्शन फॉर अ ऑडियंस के आप डिटेल प्रोवाइड करोगे और फिर कंटेंट लिख दोगे. फॉर एग्जांपल रीराइट दिस फिटनेस ब्लॉग इंट्रोडक्शन फॉर अ सीनियर ऑडियंस. तो फिटनेस ब्लॉग इंट्रोडक्शन क्या है? स्टेइंग एक्टिव इज़ अ की टू हेल्दी लाइफस्टाइल. हियर आर सम एक्सरसाइजेज टू कीप यू फिट एंड स्ट्रॉन्ग. इसी तरह से यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट टेबल्स, यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट लिस्ट्स, यू कैन यूज़ इट टू करेक्ट एंड इम्प्रूव ग्रामर. तो AI इज़ गुड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग टूल. जब आप प्रूफ रीडर को या एडिटर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो AI इज़ अ फ्री टूल अवेलेबल टू यू. इसको आप अपना कंटेंट दें, प्रॉम्प्ट आपके पास प्रोवाइडेड है, एंड देन सी कि व्हाट इट डज. यूनिक CTA आइडियाज़ आपने जो कॉल टू एक्शंस हैं वो जनरेट करवाने हैं, उसके लिए आप AI को यूज़ कर सकते हो. एंड फाइनली यू कैन यूज़ AI टू जनरेट इमेजेस.
अब इमेजेस जनरेट करवाने के लिए कोई फिक्स प्रॉम्प्ट नहीं होगी, इट विल डिपेंड ऑन कि आपको कौन सी इमेज चाहिए। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से फ्री टूल्स हैं। आप मेटा एआई से इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, चैट जीपीटी से भी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चैट जीपीटी का पेड वर्जन चाहिए होगा। आप जेमिनाई से करवा सकते हो एंड बिंग एआई से। तो हमारे पास अभी एक प्रॉम्प्ट है यहाँ पर जो कि मुझे चाहिए कुछ इमेज, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखी हुई है। तो लेट्स सी कि हमें ये टूल्स किस तरह की इमेजेस जनरेट करवा के देते हैं। मैं इसको मेटा एआई को दूंगी, जेमिनाई को दूंगी और बिंग एआई को दूंगी। सो यू कैन सी जेमिनाई क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस फॉर अस। बहुत अच्छी इमेजेस हैं और कैप्टिवेटिंग भी हैं। मेटा एआई ने हमारे लिए ये जनरेट किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। एंड लेट्स सी कि बिंग ने क्या जनरेट किया है। बिंग ने हमारे लिए ये इमेजेस जनरेट की जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो हम यहाँ पर जेमिनाई के रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर प्रीटी गुड। सो these were a few ways you can use AI in your writing process। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल चैट जीपीटी या AI प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जो आप राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो आप इन रिसोर्सेज से भी गो थ्रू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉड्यूल के साथ।